हम पढ़ेंगे होशे चैप्टर 1, चैप्टर 2 इंग्लिश किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा तू हमें ये वचन सिखाने की हम तुझसे विनती करते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर तो अपने ताकत, अपने सामर्थ्य को और ज़्यादा बढ़ाने की हम तुझसे विनती करते हैं। इसके लिए इसके बिना इसके अलावा भी खुदा परमेश्वर हम और ज़्यादा तेरे सामने बैठकर वचन को पढ़ सके और तू हमें समझा सके इन वचनों के अर्थ को। हम तुझसे विनती करते हैं, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे होशे 1 chapter, 2 chapter. 1 chapter introduction. Hosea shows God's judgment for spiritual whoredom. Restoration of Judah and Israel. The first verse. The word of the Lord that came unto Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, the beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms, for the land hath committed great whoredom, departing from the Lord. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, which conceived and bare him a son. And the Lord said unto him, Call his name Jezreel, for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to seize the kingdom of the house of Israel. And it shall come to pass at that day that I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. And she conceived again and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Lo-ruhamah, for I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. But I will have mercy upon the house of Judah, and will save them by the Lord their God, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen. Now when she had weaned Lo-ruhamah, she conceived and bare a son. Then said God, Call his name Lo-ammi, for ye are not my people, and I will not be your God. Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land, for great shall be the day of Jezreel. Chapter 2. Idolatry of the people, God's judgments against them. First verse. Say ye unto your brethren Ammi, and to your sisters Ruhamah, plead with your mother, plead, for she is not my wife, neither am I her husband. Let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts, lest I strip her naked, and set her as in the day that she was born, and make her as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst. And I will not have mercy upon her children, for they be the children of whoredoms. For their mother hath played the harlots, she that conceived them hath done shamefully. For she said, I will go after my lovers that give me my bread and my water, my wool and my flax, mine oil and my drink.
Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall that she shall not find her paths. And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them. And she shall seek them, but shall not find them. Then shall say, I will go and return to my first husband. For then was it better with me than now, for she did not know that I gave her corn and wine and oil, and multiplied her silver and gold which they prepared for Baal. Therefore will I return and take away my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof, and will recover my wool and my flax given to cover her nakedness. And now will I discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand. I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her Sabbaths, and all her solemn feasts, and I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said, There are my rewards that my lovers have given me, and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. And I will visit upon her the days of Baalim, wherein she burned incense to them, and she decked herself with her earrings and her jewels, and she went after her lovers, and forget me, said the Lord. Therefore, behold, I will allure her, and bring her into the wilderness, and speak comfortably unto her. And I will give her her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope, and she shall sing there, and as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt. And it shall be at that day, saith the Lord, that thou shalt call me Ishi, and shalt call me no more Bali. For I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. ये वचन को हिंदी में याद रखिए, जब आप दुष्ट आत्माओं के जगत में से छुटकर आते हैं, तब आपके मुंह के अंदर गालियाँ या अलग अलग प्रकार के शब्द रहा करते होंगे. ओके, कोई मंत्र बोलने की आपको आदतें रही होंगी. ओके, कोई मूर्तियों के नामों को जपना आपकी आदत रही होगी, है ना. तो परमेश्वर का वायदा है यहाँ पर कि वो हमारे मुंह के अंदर से ऐसे शक्तियों के कामों को नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो शब्दों को हटा देता है. ठीक है, तो ये वचन के आधार से हमने इसको याद रखना है और बोलना है ये वचन को, ताकि हमारे शब्दों के अंदर उनके ठिकाने ना रहे. ठीक है, ये 17 वचन को हिंदी में याद रखना आप. 18 वर्स. एंड इन दैट day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, and with the creeping things of the ground. And I will break the bow and the sword and the battle out of the earth, and will make them to lie down safely. And I will betroth thee unto me forever. Yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in loving kindness, and in mercies. I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord. And it shall come to pass in that day, I will hear, said the Lord, I will hear the heavens, and they shall hear the earth, and the earth shall hear the corn and the wine and the oil, and they shall hear Jezreel. And I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy. And I will say to them which were not my people, Thou art my people, and they shall say, Thou art my God. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर. थैंक यू अब्बा फादर. थैंक यू जीसस. होशे पढ़ेंगे, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय DSI बाइबल में से पढ़ेंगे.
पहला अध्याय पहले वचन से। होशे की भविष्यवाणी की पुस्तक पहला अध्याय पहले वचन से। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। होशे की पत्नी और बच्चे। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। और अतः उसने जाकर दिबलाइम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यजरेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को यजरेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इजराइल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। इस्राएल की पुनर्स्थापना 10 वचन से आगे। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि यज्रेल का दिन प्रसिद्ध होगा। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। विश्वासघाती गोमेर, विश्वासघाती इस्राएल। अपनी माता से विवाद करो, विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतारकर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी उन सन तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख, मधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है
कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है। उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। 14 वचन से आगे, इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उस बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न, नये दाख, मधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे यज्रेल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उस देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लो अम्मी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। हम 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, होशे की भविष्यवाणी पुस्तक में से जो वचन हमको आज तूने दिए, उसके आधार से हमें फिट एंड फिक्स कर परमेश्वर, और हमारे हर एक व्यभिचार के गलती गुनाहों को दूर कर, विशेष करके खुदा परमेश्वर हमारे घर परिवार के अंदर के हर एक व्यभिचार का ऑल्टर तोड़ कर के खुदा परमेश्वर, पाप अधर्म के ऑल्टर तोड़ कर मेरे पिता परमेश्वर हमें शुद्ध पवित्र शारीरिक जीवन देने के लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ। शारीरिक अवस्थाओं में खुदा परमेश्वर तू हमारे शांति लेकर आ, ताकि हमारा जीवन तेरे काम करने में परमेश्वर पिता आसान हो सके। अब फादर गॉड हमें सहायता कर, ये वचन हमें फिट एंड फिक्स कर, और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। रबांता खबर रखा सियान तू खबर रहा सा। मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 19 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स, 2 क्रॉनिकल्स 19 चैप्टर 20 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 वचन से 12 वचन। इतिहास की दूसरी पुस्तक 19 अध्याय 20 अध्याय हम पढ़ेंगे जब अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में, तब ये वचन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का जो सुधार लाने का समय होता है, हम में सुधार लाने का जो अवसर होता है, वो प्राप्त कर पाएगा परमेश्वर का आत्मा, और हमें सुधार सकेगा। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के भेद खुल सकेंगे, और हमें आने वाले समय के विषय में जानकारियाँ मिलेगी। परमेश्वर ऐसा होने के लिए हमें परमेश्वर का वचन अकेले में बैठकर हमको पढ़ने के लिए उत्साह देता है, उत्तेजन देता है। लेकिन समझो, अगर आप अपने तरीके से इसे पढ़ना चाहते हैं वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत रूप में, हमारे व्यक्तिमत्व में सुधार लाने के लिए अकेले में पढ़ने का फैसला किए, हम अभी तक करते आए हैं आखिरी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का आत्मा जरिया है जो हमारे अंदर, जो जैसा भी पढ़ो कोई परवाह नहीं, वो आपके अंदर काम करने के लिए
ठहरा हुआ है। आमीन। आप चाहे अकेले में पढ़िए या अपने तरीके से पढ़िए, वो परमेश्वर का आत्मा जरिया है जो आपके अंदर काम पूरा करने वाला है। निश्चित पवित्र आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हम आपके वचनों के द्वारा फिट एंड फिक्स होना चाहते हैं, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में आना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।